So, good morning, everyone, and welcome to the second trial class for FR December 2022 exam. Why I'm saying second trial class? Because last week we were there on Sunday for the first class, so we had to shift the second trial class or the next coming weekend. आज के बाद में most likely you will be in a position to decide if you understand my way of teaching, you are fine with our institute systems as well as what we personally do. Although I will just request, if you are finally deciding to join us, do that preferably by today or tomorrow morning, not beyond that. Why? Because from Tuesday we'll start giving homework also. So if you go and register only on Monday, then we will actually be in a situation that you will be added very late to the groups. Because we add students to the groups at the end of the day, सबको एक साथ. So उसमें ये हो सकता है कि communication will start floating from Monday itself. So better to get yourself registered today or maximum tomorrow, so that from Monday and Tuesday, whatever homework is coming, at least you are on pace. Because अब क्या हुआ है कि ट्रायल क्लासेस में we have lost बीच का एक वीक, मुझे उसकी भरपाई पूरी करनी है. So I will be rushing immediately with some homeworks, with some to-do list for the whole week. और आज हम जो अचीव करेंगे उसके बाद तो वैसे ही you need to start studying, क्योंकि आज पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने वाले हैं. So I'll share the screen with you. मुझे एक बार confirm करना if you all can see the screen. Chapter number 2 सामने आएगा. अभी आया नहीं, आएगा. Just a second. देखो कुछ Chapter 2 के नाम से can you see something? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बंदा है उंगली उठा के खड़ा है. सबको विजिबल है ना? Yes, ma'am. चलिए जी. So we are starting with this. आज से टेक्निकल पोर्शन चालू होगा. बेसिकली वहां वाला पोर्शन जो एग्जाम में मोस्ट लाइकली आएगा. चैप्टर नंबर 2. अभी थोड़ा सा स्क्रीन में आपका चैप्टर नंबर कट रहा होगा, अभी आगे जाके वो भी ठीक हो जाएगा. सो चैप्टर नंबर 2 में व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी? लेट्स जस्ट बिगिन दैट टेक्निकल एस्पेक्ट. Tangible means something which we can touch. Non-current assets means the assets which are not current assets. इससे वाहियात डेफिनेशन नहीं हो सकती. जो करंट एसेट नहीं है वो नॉन करंट एसेट है. अरे लेकिन नॉन करंट एसेट है क्या? आई स्पेसिफिकली से एन एसेट विच इज नॉट मेंट फॉर रीसेल, मतलब जिसको हम वापस से बेच देने के पर्पज से नहीं खरीदते, दैट्स अ नॉन करंट एसेट. इसको हम प्रोडक्शन के काम ले सकते हैं, हमारे बिजनेस के काम ले सकते हैं, लेकिन इसी को हम अमेंड करके भी आगे बेचते नहीं है. सो इफ आई से लैंड एंड बिल्डिंग for a shoe manufacturer is a non-current asset. Agree? Plant या फिर land and building for a जूता making company, it's a non-current asset. Yes or no? Agree with me or not? Yes, ma'am. लेकिन अब एक बिल्डर है. That means a builder who is constructing residential units, और वो एक एक प्रॉपर्टी को, एक एक विला को, लोगों को बना के बेचता है. Now land and building will be a non-current asset for that builder? No. No. That will be his inventory. Inventory क्यों? Non-current asset होता ही वो है जिसको आप फर्दर बेचने के इरादे से होल्ड नहीं करते. इसको आप नहीं बेचते जब तक की जरूरत ना पड़ जाए. That means the intention of reselling is not there. हाँ, हो सकता है बिजनेस की स्थिति खराब हो जाए, सिचुएशन खराब हो जाए, बेचनी पड़ जाए, that's fine. But somehow the intention of reselling doesn't exist. लेकिन यहाँ तो बिल्डर का इंटेंशन ही होता है इसको बेचने का. That means हम पहुंच जाते हैं इन्वेंट्री की तरफ. ये फर्क आपको समझना क्यों जरूरी है? क्या ये इतना डीप में एग्जाम में आएगा? नहीं, ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पे दो अलग प्रोफाइल्स की बात कर रहे हैं. एक प्रोफाइल होता है फिक्स्ड एसेट्स मैनेजमेंट का, ये इंडस्ट्री में होता है और अब आप लोगों की हायरिंग इस पे होती है. फिक्स्ड एसेट्स मैनेजमेंट में हम चैप्टर नंबर 2 का स्टैंडर्ड लगाते हैं, यानी हम IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 लगाते हैं, जिसका नाम होता है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. जबकि अगर आइटम इन्वेंट्री बन जाता है तो इन्वेंट्री के ऊपर एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है. व्हाट इज दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? किसी को आइडिया है? गूगल करके बताओ मुझे.
गूगल करके बता दो, चाहे मैंने लिख दिया हो सकता है मैंने गलत लिखा हो, प्लीज क्रॉस चेक। इन्वेंट्री पे लगने वाला कौन सा आईएएस होता है? आईएएस 2 होता है या 22 होता है या 202 होता है या 20 होता है? बताओ बताओ बताओ। अच्छा मेरी आवाज साफ आ रही है ना, बिकॉज इट्स रेनिंग हेविली हियर। यस मैम। ठीक है, हाँ जी। कौन सा आईएएस लगता है व्हेन इट इज एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री? IS 2. आईएएस 4, 2. आईएएस 2 भारत ने भी बोल दिया। गूगल कर लो यार, आई एम अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हें पता नहीं होगा, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग गूगल करो। कई चीजें फटाफट 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 गूगल पे भी हो जाती है, सो गूगल करके यू कैन चेक दिस आईएएस 2। अब ये आपसे मैंने गूगल क्यों करवाया, बिकॉज आपको ये ध्यान रहेगा। आईएएस 2 इज अ डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन की बात करता है, जबकि आईएएस 16 वो पीपीई के लिए होता है, नॉन करंट एसेट्स के लिए होता है। नॉन करंट एसेट्स का वैल्यूएशन अलग तरह से बताता है वो। इसलिए सबसे पहला कंसंट्रेशन हमें यहाँ इस चैप्टर पे ये करना है कि ये पोर्शन एक बिजनेस का सबसे महंगा आइटम होता है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सबसे ज्यादा पैसा इसमें लगा होगा प्लांट एंड मशीनरी में। आपको लेके चलती हूँ अमूल के प्लांट की तरफ, वहां से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और ये चैप्टर क्यों इतना रेलेवेंट हो जाता है। अमूल के प्लांट चलते, सब लोग तैयार हो जाओ। आइसक्रीम सब खाते हैं, इस मौसम में नहीं खाते होंगे, खाते तो हैं। देखो सब, इरफान खान इज एंटरिंग। खा लेंगे हम इस मौसम में भी। हाय इरफान, इरफान कैन यू हियर मी? इरफान आप हमें इरफान की याद दिला रहे हो, रियली मिस हिम अ लॉट। चलो आई विल शेयर अ स्क्रीन विद यू। उस स्क्रीन को देख के अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। दिस इज अ यूट्यूब वीडियो, मेरी बनाई हुई नहीं है। यहां पे देखते हैं अमूल का प्रोडक्शन सिस्टम कैसे चलता है। बताऊंगी आगे कि आपको क्यों दिखा रही हूं। ऑडियो नहीं भी है कोई बात नहीं, वो कुछ बोल नहीं रहे, वो पीछे म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, हमें तरसा रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, क्या समझ में आया इसको देख के कि मैम अमूल की ब्रांड एम्बेसडर हुई है। मैम इज गोइंग टू से कि खरीदो, इट्स अ नो ह्यूमन टच आइसक्रीम, ऐसा कुछ नो। आई वांटेड टू शो यू कि हम एक आम जिंदगी में एक छोटे से आइटम को जब परचेज करते हैं, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी यूजिंग विच इट इज मेड। इस पूरी वीडियो में 10-15 मिनट्स की जो भी वीडियो थी, आपको ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें बहुत कम दिखेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यही कारण है कि सबसे मोटा आइटम होता है उनकी प्लांट एंड मशीनरी, यानी पीपीई जिसको हम बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये सारे के सारे इनके लिए नॉन करंट एसेट्स है। एब्सोल्युटली राइट सचिन, यानी सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंसानों के भरोसे नहीं हो रहा है, मशीन्स के साथ हो रहा है। और यही कारण है ये वाला जो आईएएस है, ये आपके लिए सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंपनी। एक और लेके चलती हूं, यहाँ के इन्वेस्टमेंट को मुझे देख के बताना कि अब जिसका हम प्रोडक्शन सिस्टम देख रहे हैं उसकी पीपीई ज्यादा महंगी होगी या अमूल की पीपीई ज्यादा महंगी होगी। पीपीई इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देख के बताना जरा। ऑल्दो इसमें सिर्फ म्यूजिक ही आना है और कुछ है नहीं, बट ऑडिबल है ना वैसे।
Yes, ma'am. Audible. tightly packed monsoon treasures waiting to be discovered. Named after the goddess Torna Devi, Toranmal is gifted with the most serene natural lakes. Last Desire, which used 20% high tensile steel. The new one has 36% overall. Why? Well, because it makes the car's structure more rigid and also lighter. Your human intervention is needed. Assembly तो इंसान ही करेगा. At certain point. So what you're seeing here, of course, is full-scale production because it's a popular model, and so the company wants to really scale things up when it comes to how many cars are ready to go at launch. How many are made every day? Well, in the region of about 650. That's the kind of average here at Plant A, which is one of the 3 units that produces different models inside Manesar. 3,000 units a day. So that's a lot of new Desires heading into the market. Remember, it's no longer called the Swift Desire. It's just Desire now. So that's the new headlamp cluster on the new Desire, and it's one of the sort of distinct styling elements. And you've got the LED lights, as you can see. And right here, I have a base version, which doesn't as in the past as well. So it is not the same color that's been repeated. It's something. Now see this. अब बताओ. The planting machinery you can see here versus what is bought from Amul. As you can see, I'm inside a car plant, and it is the Maruti. ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस में होगा? The PPE which we saw for Amul का plant or the PPE which we can see here? What say? Ma'am, this one Maruti. only. Maruti का plan है. ठीक है. So now got it. Why this is the first chapter? Why non-current assets are सबसे पहले in the balance sheet? Because this is the most material amount जो एक balance sheet में company के दिखता है. That's why this IAS becomes very crucial for us also. अब इस वीडियो को दिखाने का एक पर्पस यही था कि हम फैक्ट्री विजिट तो देखो कर नहीं सकते जब तक वो विजिट प्लान होगी तब तक तुम्हारा आधा सिलेबस हो जाएगा, बट एटलीस्ट वी कैन सी यूट्यूब, थैंक्स टू यूट्यूब, कि एटलीस्ट हम ये तो देख सकते हैं कि ये चीजें वहां किस तरह से होती होगी. सो हियर वी कम टू द चैप्टर नाउ. आते हैं वापस इस पे. Sorry to disturb you, ma'am. हाँ राहुल. मैम एक्चुअली मैं क्लास छोड़ सकता हूँ क्या अभी, मतलब लीव कर सकता हूँ क्या? यस यस. नहीं, एक्चुअली मेरा सेमेस्टर चल रहा है मैम, तो मंडे को मेरा एग्जाम है. तो कोई बात नहीं राहुल, कोई बात नहीं. यू कैन लीव. थैंक यू मैम. Okay, so here we are back on the chapter. Just wanted to tell you the relevance कि ये chapter बहुत important है, और अगर आप कहीं पे भी कुछ लिख रहे हैं, please do write for every section C question. इसके adjustment का ना होना is impossible. In any case, you will find an adjustment related to IAS 16. मैं कौन सा IAS बोल रही हूँ? I'm repeating it again. सबसे पहले आपके दिमाग में ये धीरे धीरे बैठ जाएगा that we are talking about International Accounting Standards 16, which is PPE. So PPE is property, plant, equipment. यानी सारे नॉन करंट एसेट्स इसके अंदर आ जाएंगे. अब इस पे मूव ऑन करते हैं कि एग्जैक्टली ये क्रिटिकल है तो आगे क्या. तो आगे ये पीपीई के अंदर ये जितने भी बड़े बड़े आइटम्स एक कंपनी के लिए आते हैं उन सब की अकाउंटिंग होती है. यानी हम इसमें सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी नहीं लेते. वी टेक फर्नीचर ऑल्सो, वी टेक इक्विपमेंट ऑल्सो, कंप्यूटर्स ऑल्सो, लैंड एंड बिल्डिंग ऑल्सो. यानी पीपीई के अंदर हर बड़ा आइटम आता है, एवरीथिंग. अब आते हैं इसके ऊपर. अब हमें ये पता चल गया कि ये कंपनी के लिए नॉन करंट एसेट है जो पीपीई के अंदर क्लब होना चाहिए. अब क्या करूं? तो अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करो. रिकॉग्नाइज करना मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डालो उसकी. अब एंट्री डालें कैसे, उसको मेजर कैसे करें, उसके लिए IAS 16 ने कुछ रूल्स बताए. रिकग्निशन और मेजरमेंट के लिए उन्होंने बोला जब सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी आइटम को पीपीई को लेके आओगे, कॉस्ट पे लेके आओगे. दैट्स द इनिशियल मेजरमेंट. यानी आज आपने एक पीपीई का आइटम खरीदा, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका सबसे पहली एंट्री डालनी है. दैट शुड बी एट कॉस्ट. अगर उसके बाद में कोई भी खर्चा होता है तो उस खर्चे का ट्रीटमेंट अलग आएगा. लेकिन सबसे पहले आज के कॉस्ट की बात करते हैं. जब हमने इस पीपीई को आज खरीदा ही है तो कॉस्ट में क्या क्या लिया जाए?
ये कुछ 3-4 आइटम होते हैं जो कॉस्ट में लेने होते हैं। पहला आइटम, सबसे पहले जो आपने पैसा लगाया, दैट्स योर कैपिटल कॉस्ट। ये कैपिटल कॉस्ट क्या होती है? जो असेट को बिल्ड करने में लगती है। दो तरह के आइटम्स होते हैं किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम में, कैपिटल नेचर के आइटम, रेवेन्यू नेचर के आइटम। रेवेन्यू नेचर के आइटम होते हैं जो रूटीन आइटम्स होते हैं, उनकी जगह होती है पीएनएल में। कैपिटल नेचर के आइटम्स होते हैं जिनसे असेट बनता है या फिर एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बनती है, बेसिकली बैलेंस शीट में आने वाले आइटम्स। तो सारी कैपिटल कॉस्ट जो रूटीन से रिलेटेड नहीं है वो आपकी असेट में ट्रांसफर की जाती है, इंक्लूडिंग बोरोइंग कॉस्ट। ये बोरोइंग कॉस्ट क्या है, इसके ऊपर एक अलग आईएएस है। तो यहां पे इसका रेफरेंस आज आपको लगेगा कि यार ये क्या आइटम है, इसको धीरे धीरे कवर करेंगे, पहले सिर्फ बेसिक समझते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपकी जो भी कैपिटल कॉस्ट है वो आपको असेट की कॉस्ट में लेके बैलेंस शीट में असेट क्रिएट कर देना है। दूसरा, कुछ कॉस्ट होती हैं जो जरूरी होती हैं किसी भी असेट को चलाने के लिए। सो आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल जो हमारी आम जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। हम एक एसी लेते हैं, सिंपल एसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विंडो एसी, लेट्स टॉक अबाउट अ स्प्लिट एसी। नाउ लेट्स सपोज मैंने स्प्लिट एसी लिया 15,000 रुपीज का, इमेजिनरी फिगर, रैंडम फिगर, 15,000 रुपीज का लिया। दुकान वाला बोलेगा कि मैडम इसके साथ स्टेबलाइजर भी लो, स्टेबलाइजर आपके पावर फ्लक्चुएशन से आपकी मशीनरी डैमेज नहीं करेगा। ठीक है जी, बताओ जी कितना का आएगा स्टेबलाइजर? उसने बोला मैडम 3,000 का स्टेबलाइजर है, तो स्टेबलाइजर भी ले लिया। अब एसी को घर लेके जाऊंगी तो एसी इंस्टॉल तो करना पड़ेगा ना, बिना इंस्टॉल करे चलेगा कैसे? यानी एक जरूरी खर्चा उसके साथ आ गया इंस्टॉलेशन का। अब मैंने इंस्टॉलेशन के लिए पूछा, भैया इंस्टॉलेशन के क्या चार्जेस? उन्होंने बोला स्प्लिट एसी 2,000 रुपीज इंस्टॉलेशन। एसी मुझे कितने का पड़ा? 20 का। बिजली का बिल आएगा वो तो हर महीने आएगा, दैट इज अ रेवेन्यू नेचर का आइटम। लेकिन इसको खरीदते ही मेरे पास 20,000 की कॉस्ट खड़ी हो गई। So this 20,000 becomes the initial cost at which I need to recognize the AC in my balance sheet. ये डायरेक्ट कैपिटल कॉस्ट है और ये 3,000 ये भी डायरेक्ट कैपिटल कॉस्ट कह सकते हो क्योंकि एक असेट सीधा सीधा दिख रहा है। लेकिन 2,000 दिस इज इंस्टॉलेशन। ये साइट प्रिपरेशन क्या होता है? कई मशीनरीज किसी एक पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर इंस्टॉल होती हैं। जैसे अगर हम अमूल के प्लांट की बात करें, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मिट्टी में लगा के ला देंगे हम सारी की सारी, चलो भाई प्लांटिंग मशीनरी इंस्टॉल कर दो, ऐसा तो नहीं होगा। साइट प्रिपरेशन करनी होगी। ये साइट प्रिपरेशन कैसे होगी? आपको बकायदा फ्लोरिंग करनी होगी और वो फ्लोरिंग ऐसी करनी होगी कि ये जो मशीनरीज हैं जब ये ऑपरेट करें तो वो हिलने ना लगे, तो उनको हमें एक स्टर्डी बेस देना होगा। इन मशीन्स के लिए आपको एक ऊपर शेड लगाना होगा। आपके बंदे इनको ऑपरेट करेंगे, उसके लिए कुछ उनको सीढ़ियों जैसा सिस्टम लाके देना होगा कि भाई वो ऊपर चढ़ के उसको देख सके। यानी साइट प्रिपरेशन के बिना प्लांट असल में इंस्टॉल नहीं हो सकता। सो फर्स्ट द साइट प्रिपरेशन हैज टू हैपन, देन इंस्टॉलेशन हैज टू हैपन। बिना इन दोनों खर्चों के यू कैन नॉट यूज द मशीनरी, दैट्स द होल आइडिया। मशीनरी को यूज करने के लिए ये खर्चे जरूरी हैं। तो जो भी जरूरी है वन टाइम है, टू मेक दैट असेट रेडी टू यूज है, वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड होते हैं। इसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना। उनको हम कैपिटलाइज करते हैं, इसका टेक्निकल टर्म है कैपिटलाइज करना। उनको हम कैपिटलाइज कर देते हैं, मतलब असेट की वैल्यू में जोड़ देते हैं, पीएनएल में नहीं ले जाते। पीएनएल में अगर ले जाएंगे तो हम बोलेंगे एक्सपेंस करना। एक्सपेंस करना, इन टर्मिनोलॉजीज को ध्यान से सुनना। इंटरव्यूअर आपसे इन्हीं टर्मिनोलॉजीज में बात करेगा। ही विल से विल यू कैपिटलाइज दिस आइटम, तो तुम सोचोगे ओ ये कैपिटलाइज क्या होता है? कैपिटलाइज मतलब असेट की वैल्यू में जोड़ देना या लायबिलिटी की वैल्यू में जोड़ देना, मतलब बैलेंस शीट में आइटम चेंज कर देना, उसकी वैल्यू चेंज कर देना। लेकिन एक्सपेंस कर देने का मतलब होता है पीएनएल में ले जाना। तो पीएनएल में ले जाने से बैलेंस शीट पे प्रॉफिट की वैल्यू चेंज होती है, असेट या लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। That's why it is termed as expensed to P&L, capitalized in the balance sheet. तो आपको इंटरव्यूअर यही पूछेगा कि इस आइटम को कैपिटलाइज करना चाहिए या इट शुड बी एक्सपेंस्ड। सो व्हाटएवर एक्सपेंस इज नेसेसरी टू मेक एन असेट
रेडी फॉर यूज, वो हमें कैपिटलाइज करना होता है। अब इसमें एक तीसरा आइटम और आएगा, इस आइटम का फिलहाल सिर्फ आप नाम याद रखो, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आएगा ये यहां पे मेंशन जरूर देता है, लेकिन इसका मेन क्रक्स आता है आगे आने वाले चैप्टर्स में। ये होता क्या है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। आज आपने एक साइड प्रिपरेशन कर दी, इसके ऊपर अमूल के प्लांट आपने नट बोल्ट से फिक्स कर दिए, आपने एक से दूसरी जगह उस मशीनरी को या उस डब्बे को उठा के ले जाने के लिए कुछ ट्रॉली सिस्टम्स भी इंस्टॉल कर दिए। अब ये प्लांट 20 साल की लाइफ का है, 20 साल के बाद में नया प्लांट रीइंस्टॉल होगा या फिर अमूल ही निकल लेगी, दोनों में से एक ही काम होगा। नाउ लेट्स सपोज अमूल बहुत अच्छी जा रही है, अब 20 साल की लाइफ हो गई, नाउ द प्लांट हैज टू बी चेंज्ड, उसकी भी लाइफ है, कोई 100 साल थोड़ी चलती रहेगी। द कंपनी कैन गो अहेड फॉर 100 years, प्लांट एंड मशीनरी नीड्स रिप्लेसमेंट। अब जब आप इस प्लांट एंड मशीनरी को चेंज करेंगे तो क्या ये अपने आप निकल के आ जाएगी जमीन में से? जो आपने नट बोल्ट फिक्स करके इसको पूरी की पूरी साइट जो प्रिपेयर की थी उसमें इंस्टॉल किया था, अब ये अपने आप से तो निकल के आएगा नहीं कि चलो भाई मेरा काम खत्म हुआ चलो, ऐसा तो होगा नहीं। यू विल हैव टू डिसमेंटल इट, निकालना पड़ेगा। यानी ये कॉस्ट आएगी 20 साल बाद या 10 साल बाद, वट एवर इज द लाइफ ऑफ द एसेट। आपको पता है ना आज के आज ही कि ये कॉस्ट आएगी, तो आज के आज ही आपको इसको बुक करना होगा। दिस असेट विल ब्रिंग वन फर्दर कॉस्ट विच यू नो दैट इज गोइंग टू कम फॉर श्योर, और आपको ये आज ही पता है, और ये कॉस्ट अच्छी खासी बड़ी कॉस्ट होती है। डिसमेंटलिंग इज नॉट दैट इजी, अच्छी खासी कॉस्ट लगती है, यानी उसका अमाउंट आपको आज ही कॉस्ट में बुक करना होगा। लेकिन अब आप सोचोगे यार 20 साल बाद का अमाउंट है, उसको मैं आज कैसे बुक करूं? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है प्रेजेंट वैल्यू पे बुक कर देना। इसीलिए मैंने बोला एक ही साथ हम सारी चीजें नहीं सीखेंगे, ये धीरे धीरे आगे आएगा। प्रेजेंट वैल्यू पे उसको हम बुक करेंगे। ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? आएगा, धीरे धीरे आएगा, अभी एक साथ नहीं। बट पॉइंट ये है उसको आज की वैल्यू पे बुक करेंगे। 20 साल बाद होने वाले 2 करोड़ आज जिस वैल्यू के होंगे हम उस पर बुक करेंगे। तो इनिशियल कॉस्ट, इसका मतलब हमें क्या क्या लेनी है? विच इज एसेंशियल टू मेक द असेट रेडी फॉर यूज। नंबर 2, अगर हमें आज ही ये दिखता है कि डिसमेंटलिंग पे कोई कॉस्ट आएगी, हम उसको भी आज ही बुक करेंगे। प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है जैसे ही आपको पता लगे कोई कॉस्ट लगनी है, बुक इट इमीडिएटली। फायदे, वी डोंट बुक अंटिल अनलेस दे हैपन, बट नुकसान, एक्सपेंसेस, वी इमीडिएटली बुक द मोमेंट वी गेट टू नो कि ये होंगे। तो कॉस्ट में डायरेक्ट चीजें लेनी है। किसी को कॉस्ट समझने में, इनिशियल मेजरमेंट समझने में कहीं कोई दिक्कत? बताओ बताओ जी बताओ। ठीक है, चलो अब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पे आते हैं। ये भाई थकेलों की तरह मत पढ़ाई करो, मैं भी क्वेश्चन पूछना चालू करूंगी सबसे। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मतलब ये तो हमने पहला तो ये पढ़ा जो हमने असेट को खरीदने के टाइम पे बुकिंग कर दी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एसेट खरीद लिया अब इसके ऊपर कोई खर्चा ही नहीं होगा, इस पे भी खर्चा होगा। कई बार मेजर रिपेयर आ सकती है, इसका क्या करें? वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर बताएगा कि इसका क्या करें। सो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में इन्होंने बोला दैट यू हैव टू कैपिटलाइज सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ओनली इफ, कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। कैपिटलाइज करना मतलब असेट की वैल्यू में जोड़ना। आप सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को नॉर्मली तो P&L में ले जाओगे, लेकिन आप इसको कैपिटलाइज करेंगे अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो। पहली कंडीशन, इफ इट इंक्रीजेस द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द असेट। ये क्या होता है? इसकी टर्मिनोलॉजी को मैं समझा देती हूं, आपको ये लिखने को नहीं आएंगी, ये ABCD ऑप्शंस में आपके पास आएंगी। जब आपको उसका क्रक्स पता होगा तो अपने आप उस पर टिक मार्क कर देंगे आप। एक असेट के इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे इंक्रीज होते हैं? तो सिंपल अरेंजमेंट देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक घर है 1 बेडरूम का, आई हैव ओनली 1 बेडरूम, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे 1 बेडरूम और बना लेना चाहिए। है मेरे पास स्पेस, मैंने 1 बेडरूम और बना दिया। क्या असेट के इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्रीज हुए? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 बेडरूम से 2 बेडरूम बन गया, लेकिन अब मैंने इसी घर में यानी 1 बेडरूम वाले घर में ही
सिर्फ पेंट करा दिया पिंक कलर का, पहले व्हाइट था अब पिंक करा दिया, डज दैट इंक्रीज द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द हाउस? No, ma'am. No, ma'am. That's expense. यानी बिल्कुल, सो इट हैज टू बी एक्सपेंस्ड टू P&L। तो मेरी टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे बोलना चालू करना, बिकॉज दिस इज द टर्मिनोलॉजी जो आगे चल के भी काम आएगी। दिस इज टू बी एक्सपेंस्ड बिकॉज इट इज नॉट इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स कमिंग फ्रॉम द असेट। इस पे क्वेश्चंस SBR में बहुत सारे आएंगे और ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी डिसीजन मेकिंग में बहुत आसानी देगा। दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स लिटरली फेल। वो आइडेंटिफाई करने में उनको बड़ी दिक्कत आती है कि कौन से आइटम को एक्सपेंस कर देना है, कौन से आइटम को कैपिटलाइज कर देना है। कैपिटलाइज करने का सबसे पहला रूल ये है, इट शुड इंक्रीज द इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एसेट। फर्स्ट रूल, वो रूटीन नेचर का नहीं होना चाहिए। रूटीन नेचर के आइटम तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होते हैं, दे डू नॉट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द एसेट। देन अब यहां पे आ जाता है थोड़ा सा और टेक्निकल पोर्शन। इट इज द ओवरहॉल और मेजर इंस्पेक्शन और रिपेयर ऑफ द एसेट। ये क्या है? सो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, एयरलाइंस इंडस्ट्री, बेसिकली एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जब एक फ्लाइट बहुत लंबे ट्रैवल पे जाती है उससे पहले उसका एक मेजर इंस्पेक्शन होता है। नाउ लेट्स सपोज कि हम इंडिया से US जा रहे हैं एंड इट इज अ 22 आवर्स ऑफ जर्नी। 22 आवर्स में ऊपर उड़ते उड़ते ही तो टायर की स्ट्रेंथ, इंजन की फंक्शनिंग, ग्रीसिंग प्रॉपर है कि नहीं, ये सब तो चेक नहीं होगी। यानी इन सब चीजों की चेकिंग पहले ही होगी। दैट्स अ मेजर इंस्पेक्शन। उस इंस्पेक्शन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और हर कुछ नंबर ऑफ किलोमीटर्स के बाद में दिस इंस्पेक्शन हैज टू हैपन। मेनी कंट्रीज हैव वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स रिलेटेड टू दीज एविएशन पर्सपेक्टिव्स। ये किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से आप कराएंगे, कई बार तो आपकी खुद की जो फ्लाइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मेजर इंस्पेक्शन में। तो ये मेजर इंस्पेक्शन हो गई, ओवरहॉल हो गई। ओवरहॉल भी एक तरह का मेजर रिपेयर और इंस्पेक्शन ही होता है। ये सब अगर है तो आपको कैपिटलाइज कर देने चाहिए, क्योंकि ये हर महीने हर साल तो नहीं हुए, दे आर मेजर। नाउ अनदर थिंग, फ्लाइट लैंड कर रही थी, गॉड फॉर सेक ऐसा ना हो, लैंड करते टाइम एक इंजन टूट के नीचे गिर गया। सब एवरीबडी वाज सेफ, दे लैंडेड सेफली, एवरीबडी वाज हैप्पीली ऑन द ग्राउंड। एयरक्राफ्ट आराम से उतर भी गया, लेकिन उतरने से 10-15 फीट पे उसका एक मेजर इंजन निकल के नीचे गिर गया। दैट्स अ मेजर रिपेयर इन द एसेट। कैन आई टेक इट टू P&L? कैन आई एक्सपेंस इट? नो, यू हैव टू कैपिटलाइज इट। अर्थक्वेक आया, घर का एक रूम पूरा ही टूट गया, इतने बड़े बड़े क्रैक्स आ गए। नाउ इट इज नॉट सेफ फॉर लिविंग, इट नीड्स अ मेजर रिपेयर। दैट मीन्स द एसेट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट दिस रिपेयर। सो दैट्स द होल आइडिया। द एसेट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट दिस रिपेयर। बिना पेंट के एसेट यूज हो सकता है, लेकिन अगर इतना बड़ा कुछ डैमेज है जिसके बगैर आप एसेट को यूज ही नहीं कर सकते, दैट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड। Am I clear with this point? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तीसरी चीज, तीसरी चीज में छोटा सा चेंज है। नाउ वी डू नॉट से कॉम्प्लेक्स एसेट, ये लेकिन फिर भी मैंने यहाँ लिखा क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कॉम्प्लेक्स एसेट वर्ड हटाया गया है नए सिलेबस में। कॉम्प्लेक्स एसेट का कॉन्सेप्ट अभी भी पिक्चर में है। ये कॉम्प्लेक्स एसेट्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स एसेट्स होते हैं जो बहुत सारे अलग अलग महंगे महंगे कॉम्पोनेंट्स को जोड़ के बनाए जाते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट, जैसे मेट्रो। ये कॉम्प्लेक्स एसेट्स है। इनमें बड़ा महंगा इंजन होता है, बड़े महंगे इनके कैबिनेट्स होते हैं। एक ट्रेन है इंडिया में, पैलेस ऑन व्हील्स, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स एसेट। वो ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रक्चर है और उसको देख के बना दिया, जैसे घर एक स्ट्रक्चर होता है। इट्स अ सिंगल स्ट्रक्चर, इट इज नॉट एन असेंबली ऑफ मेनी कॉम्प्लिकेटेड आइटम्स। कार इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स एसेट। आइटम्स असेंबल जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो जो आइटम्स असेंबल हो रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड और बहुत महंगे आइटम्स नहीं है। गाड़ी सारी जुड़ के महंगी होती है, उसका टायर अकेला महंगा नहीं है, भले हम असेंबल करते हैं पर महंगा नहीं है। लेकिन एयरक्राफ्ट ले लो, मेट्रो ले लो, इन सारे आइटम्स की असेंबली भी जिन चीजों की बेसिस पे हो रही है, दे आर वेरी कॉस्टली। तो कॉम्प्लेक्स एसेट्स में से कॉम्प्लेक्स वर्ड हटाया गया है आपके सिलेबस से, सिर्फ वर्ड्स क्लियर करने के लिए, क्योंकि बच्चा इसमें उलझ जाता है कि यार ये कॉम्प्लेक्स एसेट होता क्या है।
वो असेट जो बहुत सारे अलग अलग आइटम्स को जोड़ के बनता है और जिसका हर आइटम अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो एयरक्राफ्ट में आपको मशीनरी का कोई आइटम ऐसा नहीं मिलेगा जो कॉम्प्लेक्स ना हो। वो सिंपल सा फैन दिखता है बाहर वाला, उसके पीछे की मशीनरी वेरी कॉम्प्लेक्स असेट, कॉम्प्लेक्स आइटम। एक विंग होता है एयरक्राफ्ट का, कॉम्प्लेक्स असेट, क्योंकि विंग सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर की लेयर नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। कॉकपिट, कॉम्प्लेक्स असेट, वो तो हमने मूवीज में भी देखा है, उसमें इतने सारे बटन्स होते हैं। जस्ट इमेजिन कि ये बटन कौन सा किस पोर्शन से कहां एयरक्राफ्ट में लिंक्ड होता है। ऑटो पायलट, व्हाट डू यू थिंक, इजंट इट अ कॉम्प्लेक्स असेट? इट इज। तो ये वर्ड कॉम्प्लेक्स हटाया गया है ताकि स्टूडेंट्स डू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट इसमें इतनी कोई ऐसी महाभारत नहीं है समझने की। कॉम्प्लेक्स असेट्स आर असेंबली ऑफ कॉम्प्लेक्स आइटम्स विच मेक्स द असेट वेरी कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स आइटम्स में या कॉम्प्लेक्स असेट्स में अगर कोई भी आइटम रिप्लेस किया जाता है वो भी कैपिटलाइज किया जाता है। एयरक्राफ्ट में से इंजन रिप्लेस कर दोगे तो क्या P&L में एक्सपेंस कर दोगे उसको? नो, वी विल कैपिटलाइज इट। तो सिंपल, जो आइटम डाला उसको कैपिटलाइज करेंगे और ये जो पुराने वाला निकाला इसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब उसकी वैल्यू निकाल देंगे एसेट की वैल्यू में से। निकल रहा है ना असेट, तो उसकी जो भी वैल्यू थी वो निकाल लो, नए वाले की जो भी वैल्यू है जोड़ दो। दैट इज कैपिटलाइजेशन। लेकिन एयरक्राफ्ट के सीट कवर्स बदलने हैं। व्हाट डू यू से, शुड इट बी कैपिटलाइज्ड और एक्सपेंस्ड? एयरक्राफ्ट सीट कवर्स चेंज, एक्सपेंस। व्हाई? तुम सीट कवर नहीं भी बदलोगे तो भी एयरक्राफ्ट उड़ लेगा, सीटें ही नहीं होंगी तो भी एयरक्राफ्ट उड़ सकता है। दैट्स जस्ट फॉर द डेकर, नॉट, इट डजंट मेक द एसेट वर्क। सीट कवर से या सीटों के लगने से एयरक्राफ्ट के चलने का कोई लेना देना नहीं है। सो दैट हैज टू बी एक्सपेंस्ड। ठीक है जी, ये स्लाइड क्लियर होती है? Yes, बोलो। ma'am. Yes, ma'am. अब ये कॉम्प्लेक्स असेट नीचे डिफाइन किया हुआ है, ऑल्दो आपको ये करना नहीं है, बट ठीक है, मैंने इसमें डिटेल डाली है कि कॉम्प्लेक्स असेट है क्या, जिसमें अलग अलग आइटम्स जोड़ के उसको बनाया जाता है और हर आइटम एक अलग ही रेट पे डेप्रिशिएट होता रहता है। यानी ये बेसिकली एक खिचड़ी होता है। इसलिए कॉम्प्लेक्स असेट के नाम को हटा दिया कि स्टूडेंट्स को ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। आपके कैप्लिन की स्टडी टेक्स्ट का ही ये एक क्वेश्चन है। किस तरह का क्वेश्चन है, क्या है, वो देखते हैं। सॉल्यूशन मत देखना, दिमाग लगाना। A piece of machinery has an annual service cost. Annual service cost यानी हर साल आएगी। क्या सर्विस कराने से असेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है? उसकी लाइफ थोड़ी बहुत बढ़ती है, लेकिन क्या एक गाड़ी जो 5 लोगों को बिठा सकती है सर्विस करने से 12 लोगों को बिठा लेगी? No, ma'am. No, ma'am. So this item becomes P&L का item. It should be expense. Expense. ठीक है? During the most recent service, it was decided to replace part of the engineering, meaning that it will work faster. यानी कुछ पार्ट चेंज करना चाह रहे हैं, जिसको चेंज करने की वजह से क्या होगा? मशीन विल वर्क फास्टर एंड प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पर आवर। हर घंटे में प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़े कि नहीं बढ़े? Yes, ma'am. अब इंक्रीज हो गए। इंक्रीज हो गए। The cost of the replacement part is 20,000. तो क्या बोलते हो? दो अमाउंट्स हैं। पहला अमाउंट है 10,000, जो आप सब ने ही बोला है कि इट शुड बी एक्सपेंस्ड, ये P&L में जाना चाहिए। Now what is your view on 20,000 का आइटम? Should this be capitalized or expensed? Capitalized. Capitalized. It is increasing the economic benefits given by the asset. कैपिटलाइज करो इसको, बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू ज्यादा दिखा दो, क्योंकि हमारा एसेट अब ज्यादा अर्न करके देगा, ज्यादा बेनिफिट्स फेच करके देगा। दोनों का डिफरेंस समझ में आया? बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब आते हैं डेप्रिसिएशन की तरफ। बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है ये डेप्रिसिएशन, ध्यान से सुनना। क्लास 11th में पढ़ते थे आप, वही चीज है। सो दिस इज normal wear and tear in the value of the asset because of its continuous use. That's depreciation. Wear and tear क्या होता है? पहनना और फाड़ना, मतलब किसी asset को यूज करने की वजह से उसकी जो वैल्यू गिरती है, that is depreciation. लेकिन depreciation की यहां पे डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है। यहां पे कई बार बिना wear and tear के भी आपकी वैल्यू ऑफ asset गिर जाती है।
वो गिरने लगती है। कैसे? मैंने कार खरीदी, कार मैंने खरीदी 20,000 रुपीज में, रुपीज। तो 20,000 रुपीज की कार जैसे ही मैंने शोरूम से नीचे उतारी, क्या वो 20,000 की अब बिकेगी? मैंने कुछ यूज नहीं किया है, बस शोरूम से नीचे निकली है। Will I be sell it at 20,000? No, ma'am. No, ma'am. यानी सिर्फ नॉर्मल वेयर एंड टेयर नहीं होता है डेप्रिसिएशन, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ द एसेट, दैट्स डेप्रिसिएशन। हाँ, इसमें छोटा सा एक डिफरेंस आएगा, उसको भी अभी समझेंगे, लेकिन आपके यहां एफआर के पर्सपेक्टिव से अब डेप्रिसिएशन में समझना क्या है। आप डेप्रिसिएशन कब से लगाना चालू करेंगे? लेट्स सपोज मैंने एसेट खरीदा अप्रैल में, लेकिन 4 महीने गाड़ी चलाई नहीं, उसके बाद में जाके मैंने कुछ अक्टूबर में जाके गाड़ी यूज करनी चालू करी, तो मुझे डेप्रिसिएशन अक्टूबर से ही लगाना चाहिए। मैंने अप्रैल में तो गाड़ी चलाई नहीं। No, ma'am. No, ma'am. अप्रैल से अप्रैल फॉर यूज हुआ था उस टाइम। बिल्कुल, अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम अप्रैल। आपने यूज नहीं किया, उससे क्या उसकी वैल्यू नहीं कर रही? खड़ी गाड़ी 10 साल मैंने गाड़ी सिर्फ खड़ी रखी है, चलाई भी नहीं, तो क्या उसकी सेम वैल्यू मिलेगी जो 10 साल पहले थी? No, No, ma'am. That means value of the asset goes down from the day it is available for use. Immediately आप यूज करो ना करो, जैसे ही शोरूम से गाड़ी नीचे निकली वहीं से डेप्रिसिएशन चालू हो गया। हाँ, कम डेप्रिसिएशन लगेगा, दैट्स फाइन, बट 20 का 20 में तो साहब कोई नहीं लेगा। एक बदमाशी की बात बताती हूँ तुम्हें। एक कंपनी ने अपने सारे एम्प्लॉयज को दिवाली पे एलेक्सा गिफ्ट किया। एलेक्सा पता है सबको? पता है? Yes. ठीक है, दैट एलेक्सा वॉज अप्रोक्सीमेटली 5-6 हजार की। अब एलेक्सा को लोग पहले से ऑलरेडी अपने अपने कंजम्पशन के लिए खरीद चुके थे। सो नाउ दिस वाज एन आइटम विच एक्स्ट्रा केम इनटू द हाउस। सडनली OLX पे hundreds of employees posted this sale of Alexa। 5,000 का आइटम सबने 4-4 हजार में बेच दिया। खरीदने वाले को क्या मजा आया? अबे नया का नया आइटम मिल गया 1,000 रुपए सस्ते में, पैक्ड, नॉट इवन ओपन्ड। यूज तो बहुत दूर की बात है, पर फिर भी 1,000 रुपए का नुकसान तो खाया ना एम्प्लॉय ने। एम्प्लॉय ने तो खैर क्या ही नुकसान खाया, लेकिन 5,000 का आइटम 4,000 में बिका। दैट्स डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट इट इज अवेलेबल फॉर यूज, whether you use it or not. So that's the whole idea. But literally मैं उसको देख रही थी कि यार कंपनी के कितने पैसे बर्बाद कर दिए। मतलब इससे अच्छा तो कंपनी पैसे दे देती। 5,000 में कंपनी ने खरीदा, एम्प्लॉय ने 4,000 में बेच दिया, सीधा फटका 1,000 का। बट एनीवेज कोई गिफ्टेड आइटम इज अ गिफ्टेड आइटम। अब दूसरी चीज जो FR लेवल की आती है। नाउ आई वाज यूजिंग SLM स्ट्रेट लाइन मेथड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। मैं स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रही थी। सडनली मुझे एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया, ऐसा करते हैं कि WDV से करते हैं, यानी SLM से शिफ्ट होके WDV से करना मेरे लिए फायदेमंद है। तो मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल्स उठाए, WDV से डेप्रिसिएशन चालू कर दिया। कैन आई डू दैट? मन मर्जी है कि एक मेथड से दूसरे मेथड में जब इच्छा हो तब आप चेंज कर दो। नो, चेंज ऑफ मेथड इज परमिसिबल ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। 3 सिचुएशंस में ही परमिसिबल है, वरना आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। आज WDV लगा दी, कल SLM लगा देंगे, आज SLM चल रहा है, कल WDV लगा देंगे। अरे तो मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? तो 3 सर्कमस्टांसेस IAS 16 ने अलाउ किए कि इन 3 सर्कमस्टांसेस में आप मेथड चेंज कर सकते हो। पहला सिचुएशन, नया वाला मेथड आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा बेटर डिपिक्ट करेगा, यानी आप एक ऐसे एसेट पे मेथड चेंज कर रहे हैं जिसका वाकई बेटर रिप्रेजेंटेशन आएगा मेथड चेंज करके। सो द होल आइडिया इज कि आपके प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अगर मेथड चेंज करने से वो बेटर हो रहा है, व्हाई नॉट डू इट। दूसरा रीजन, इट इज नॉट अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये अकाउंटिंग पॉलिसी का अलग चैप्टर है। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज ना होने का क्या मतलब? एक कंपनी की पॉलिसी होती है कि हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, दिस इज पॉलिसी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, अप्रिशिएट करने लग जाएंगे। दैट शुड नॉट हैपन। ये चेंज ऑफ एस्टिमेट है कि SLM की बजाय हम WDV ले लेते हैं। दैट इज अ चेंज ऑफ एस्टिमेट। आप अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगे, और पॉलिसी होती है असेट डेप्रिशिएट होना चाहिए, दैट्स अ पॉलिसी। सो पॉलिसी चेंज नहीं करनी,
इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। यानी अकाउंटिंग एस्टिमेट मैंने चेंज किया है। पहले मुझे लग रहा था एसएलएम के बेसिस पे कि एसेट की लाइफ 10 इयर्स है, लेकिन ये तो एसेट अब मार्केट में मिल ही नहीं रहा, यानी अब मैं इस एसेट को चला सकती हूँ 15 साल। मेरा एस्टिमेट बदल गया, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी बदल जाएगा। तो दैट इज चेंज इन एस्टिमेट। चेंज इन एस्टिमेट बिल्कुल हो सकता है, लेकिन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं करनी है। आप मेथड चेंज कर सकते हैं अगर आपको ये लगे कि आप यहाँ पे सीधा सीधा बेटर प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल मेथड चेंज करिए। ठीक है जी, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, बोलो। यस मैम। मैम Yes, ma'am. थर्ड वाला एक बार फिर से समझें। खुशी थोड़ा सा लाउड बोलना बच्चे। थर्ड वाला चेंज थर्ड इन वाला इज अकाउंट। नॉट अ चेंज, इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। हाँ मैम। हाँ, सो हाँ। अकाउंटिंग एस्टिमेट में अगर चेंज होता है देन यू कैन एब्सोल्युटली चेंज द मेथड। अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब आपको पहले लग रहा था कि एसएलएम के बेसिस पे 10 साल में एसेट को मैं राइट ऑफ कर दूंगी, अब आपको लग रहा है नहीं यार ये तो मेरा एसेट 10 साल से ज्यादा जाएगा, मुझे इसको डब्ल्यूडीवी से राइट ऑफ करना चाहिए। राइट ऑफ करना चाहिए इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि आपका एस्टिमेशन चेंज हो गया। तो एस्टिमेशन चेंज होते ही यू कैन चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड। नाउ क्लियर, बोलो। यस मैम। यस। ठीक है, चलो Ma'am. अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे। हाँ जी, एनीबॉडी वाज आस्किंग समथिंग? ओके, अब क्या होता है, अब हम जब एफआर लेवल पे जा रहे हैं तो ये ऐसा तो होगा नहीं कि एसेट खरीद लिया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया, बात खत्म। जी नहीं, आपको हर बार हर साल यानी बैलेंस शीट डेट पे आपको यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट रिव्यू करनी है। एसेट रिव्यू करना है, रेजिडुअल वैल्यू आपके एसेट की क्या है वो रिव्यू करनी है, सिंपल रिव्यू करनी है वो। अब ये जो रिव्यू करेंगे आप, ये कैसे रिव्यू करेंगे? एक प्रोफाइल होता है एक बंदे का, एक्चुरियल, ये सुना होगा आपने, एक्चुअरी वैल्यूएशन नाम की एक चीज होती है। एक्चुअरी एक बंदा होता है, एक डिग्री होती है एक्चुरियल वैल्यूएशन, उसको क्वालिफाई करके बंदा है बनता, ये बंदा बनता है एक्चुरियल वैल्यूएशन के साथ। अब ये जो एक्चुरी होता है, ये एक्चुरी क्या करता है, ये देखता है एसेट को कि ओके एसेट ऐसा है, हाँ भाई इसकी ना लाइफ इतनी है, वो आपको सर्टिफिकेट दे देता है, उसके बेसिस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो ये आपको रिव्यू कराना होता है टाइम टाइम पे। दिस रिव्यू हैज टू हैपन एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। वैसे तो इसमें आईएएस कोई टाइम नहीं बोलता, लेकिन कंपनीज रिपोर्टिंग पीरियड पे कराती है, बैलेंस शीट डेट के हिसाब से कराती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन साल के एंड में लगाती है, तो साल के एंड में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली एसेट की लाइफ बची कितनी है। अब आता है, आपको लग रहा था 10 इयर्स उसकी लाइफ है, लेकिन एक्चुअली बोल रहा है कि नहीं जी ये तो 10 ईयर नहीं 8 इयर्स ये लाइफ। यानी अब क्या हुआ, अब आपको डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन की वैल्यू बदल जाएगी बिकॉज देयर इज अ रिविजन इन द लाइफ ऑफ द एसेट। क्या होगा, अब आप लेंगे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एट द डेट ऑफ रिविजन, मतलब जो कैरिंग अमाउंट है वो वापस से कैलकुलेट करो, उसकी रिवाइज्ड स्क्रैप वैल्यू कैलकुलेट करो, ये जो भी आपकी वैल्यू आएगी, यानी कि हम एसएलएम में ध्यान है क्या करते थे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, ये फॉर्मूला हुआ करता था डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ये जो कॉस्ट है ये डब्ल्यूडीवी ले सकते हैं हम, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट, इसको भी रिकैलकुलेट कर लो, रिकैलकुलेट करो आज तक की आपकी क्या कॉस्ट बची है, माइनस नए वाली स्क्रैप वैल्यू ले लो, डिवाइड बाय नए वाली लाइफ ले लो, ये आपका नया डेप्रिसिएशन। यानी नए वाली वैल्यूज उठानी है पुराने की बजाय, दैट्स द क्रक्स। और ये जो अमाउंट है ये आपको हर साल डेप्रिसिएशन की तरह चार्ज करते चलना है। ये तो डेप्रिशिएबल वैल्यू है, जो मैंने अभी लिखा था दैट इज योर डेप्रिसिएशन पर ईयर। ये दिस इज द डेप्रिसिएशन जो आपको हर साल अब चार्ज करना है। ये बोल रहा है इस अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है, मैंने भी वही किया है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, उसको ही डेप्रिसिएशन करेंगे, उसको ही डेप्रिशिएट करेंगे। इसको थोड़ा सा और बेटर समझाती हूं एक क्वेश्चन की मदद से। ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 है आपकी बुक का, यानी कि कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट का। इसको एक बार देखते हैं। एन एंटिटी परचेज्ड एन असेट फॉर $20,000, कितने की खरीदी, 20,000 की, ऑन 1 जनवरी 2013। Straight line depreciation of 5,000 has been charged, assuming a 4-year useful life with no residual value. तो एक बार इसकी इंफॉर्मेशन को देखते हैं, कब परचेज किया गया है,
1 जनवरी 2013। ये 1 जनवरी 2013 को कॉस्ट ऑफ असेट आपकी होती है $20,000 की। ये $20,000 वाला जो असेट है, इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? हाउ मच इज द स्क्रैप वैल्यू? अरे भाई लोगों, हेलो, कितनी स्क्रैप वैल्यू है? 0. 0। लाइफ कितनी है? 4 years. 4 years. 4 years। तो आपने अगर इसको SLM से कैलकुलेट किया होगा तो कितने पे डेप्रिसिएशन के बेसिस पे कैलकुलेशन की होगी? 5. बिल्कुल, 20,000 माइनस नो स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। SLM का फॉर्मूला क्या होता है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा? SLM से डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ द एसेट। कितना आ रहा है ये? हाउ मच इज दिस? 5,000. दिस इज 5,000। और ये क्वेश्चन ने दे भी दिया, एग्जाम में आपको नहीं देगा, यहाँ वो आपको समझा रहा है इसलिए उसने 5,000 कैलकुलेट करके दे दिया। लेकिन एग्जाम में आपको खुद निकालना आना चाहिए कि 4 साल की लाइफ है, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? 5,000 चार्ज होगा। ऑन 1 जनवरी 2015 अज्यूम करती हूँ इसको, the annual review of the asset life was undertaken and the remaining useful life of this asset was estimated at 4 years। यानी कि ऐसे केस में इन्होंने जब रिवीजन किया, रिवीजन कितने साल बाद किया? पूरा 2013 एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाया, पूरा 14 लगाया और 15 के पहले दिन को इन्होंने लाइफ रिव्यू कर दी। यानी 2 साल का डेप्रिसिएशन लग गया। लगा कि नहीं लगा? ये 2 साल का डेप्रिसिएशन समझ में आता है? यस ये मैम। कौन से डेप्रिसिएशन है 2 साल? Yes, sir. दिस इज 2013 पूरा एंड 2014 पूरा और 15 चालू होते ही हमने लाइफ रिव्यू करके देखी। तो 2 सालों में डेप्रिसिएशन लगा कितना होगा? क्या 5,000 इंटू 2 लगा होगा? Yes, ma'am. 10,000. 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया होगा। यानी 1 जनवरी 2015 को आपके एसेट की वैल्यू कितनी होगी? 10,000। 20,000 इसकी कॉस्ट थी, 2 साल का डेप्रिसिएशन हम लगा चुके, यानी जिस दिन हम इसकी लाइफ रिव्यू कर रहे हैं उस दिन इस एसेट की वर्थ थी $10,000। चलो देखते हैं फिर ये कितनी लाइफ आई इसकी। इस दिन पता चलता है कि रिमेनिंग लाइफ 4 साल है। हम तो टोटल 4 साल मान रहे थे, यहाँ तो 2 साल यूज करने के बाद भी 4 साल की लाइफ निकली। तो क्या करें? देन व्हाट शुड बी डन? 10,000 डिवाइडेड बाय 4 से डेप्रिसिएशन। Absolutely। अब आपके एसेट की वर्थ कितनी है? 10,000 है जी। कितने साल और यूज करोगे? 4 साल और यूज करेंगे। तो अब डेप्रिसिएशन कितना लगाना चाहिए? 5,000 लगाने का तो मतलब नहीं। तो कॉमन सेंस क्या बोलती है? अब इस 10,000 को डेप्रिशिएट कर देते हैं, बची हुई जितनी भी लाइफ। क्योंकि आज जब रिविजन हुआ तो असेट आपकी बुक्स में कितना दिखता था? 10,000 दिखता था। तो 10,000 डिवाइड बाय 4 इज हाउ मच? 2,500। अब डेप्रिसिएशन आप कितना लगाएंगे? 2,500 का। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015? क्या ये सबको समझ में आया? 2,500 कैसे आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हर साल आने वाले हर साल अब हम लगाएंगे 2,500, 2,500, 2,500, 2,500। क्लियर? बोलो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें? No, ma'am. No, ma'am. दिस इज कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट का क्वेश्चन। अच्छा, बिफोर यू ऑल डिसाइड टू ज्वाइन, आपको एक चीज मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चंस मैं क्लास में पीपीटीज में रन कर रही हूँ, ये क्वेश्चंस आपको नोट्स की पीपीटी में नहीं मिलेंगे। ये क्यों नहीं मिलेंगे? ये पीपीटीज में इसलिए है ताकि मुझे बार बार पीपीटी बंद करनी और खोलनी ना पड़े, इसलिए मैंने इनके स्क्रीनशॉट्स यहाँ डाले हुए हैं। आपको नोट्स मेरे बनाए हुए मिलेंगे। ये जो बुक के क्वेश्चन है उसके लिए तो आपको बुक लेनी है ना। So these questions will not be available for you in the PPTs. This is a copyright of Kaplan. I cannot sell these questions under my name. ये सिर्फ मैं क्लास में प्रैक्टिस करा सकती हूँ, बट ये आपको मेरी तरफ से नहीं मिलेंगे, ये बुक में होंगे। Got it? ये इस चीज से क्लियर है ना? कंफ्यूजन में मत आना। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ क्या? Yes, ma'am. बताओ। Clear, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलो, अब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पीपीई करेंगे। तुम लोग पहले 10 मिनट का ब्रेक ले आओ। वील कैच अप एट 11:05 और फिर इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं, अदरवाइज एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 11:05, 10:56 एक ही बात है। तो 11:05 पे मिलते हैं, ठीक है? ओके। Yes, ma'am. Okay, ma'am. चलिए जी, लेट्स कंटिन्यू।
हाँ जी, अब आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ। सो हाउ डू वी ट्रीट द पीपी। अभी तक हमने ये देख लिया कि हम अमाउंट क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्या कैपिटलाइज करेंगे, क्या एक्सपेंस करेंगे, ये सब बातें ठीक है। डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, लाइफ कैसे रिव्यू करेंगे, लेकिन ये सारी कैलकुलेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे डालेंगे, अब उसकी तरफ आते हैं। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर दो मॉडल्स बताता है IAS 16। दो मॉडल्स मतलब दो अलग अलग मेथड्स। पहला मेथड बोलता है आप कॉस्ट मॉडल यूज कर सकते हो, दूसरा बोलता है आप रिवैल्यूएशन मेथड यूज कर सकते हो। कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, असेट को उसकी कॉस्ट पे रखा जाता है, हर साल नहीं रिव्यू करते रहना, कॉस्ट पे रखो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक डब्बा बनाओ, उसमें हर साल डेप्रिसिएशन डालते रहो। तो ये आपको अगर ध्यान हो, 12th में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में बड़ा ये दुखी करता था ये आइटम, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जब आप अकाउंट बनाया करते थे। ये वही चीज है, यानी असेट को मैं हमेशा कोशिश करूंगी, लेट सपोज मैंने $1 लाख का खरीदा, आई विल ऑलवेज ट्राई कि वो $1 लाख का ही दिखे। तो डेप्रिसिएशन हर साल का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक अलग से बॉक्स बनेगा, उसमें डलता रहेगा। माय कॉस्ट ऑलवेज इन द बैलेंस शीट विल रिफ्लेक्ट एट 1 लाख। ठीक है, वो माइनस करके नेट बाहर निकल जाएगी, लेकिन इन्वेस्टर को ये पता चलेगा कि ये असेट खरीदा गया था $1 लाख में। ऐसे केसेस में कंपनीज हर बार रिवैल्यूएशन के पंगे में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए ऐसा करती है। या फिर असेट की वैल्यू हर साल बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है, इसलिए भी वो परेशान होती है, उसको कॉस्ट मॉडल पे डाल देती है। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल में हर बार आप हर 12 महीने में यानी हर रिपोर्टिंग पीरियड पे अमाउंट को रिवैल्यू करते हैं। कैसे, जैसे मैं दोनों का तुम्हें एग्जांपल देती हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में कौन कौन सा मेथड यूज करेगा ना। मैं सपोज आई एम शर्मा जी ने एक बिजनेस चालू किया और शर्मा जी ने बिजनेस को फैक्ट्री डालने के लिए एक लैंड खरीदी। अब ये जो लैंड है शर्मा जी ने ये खरीदी थी $1 लाख की। अब जब पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की ऐसी की कैसी हुई, सारी बैंड बचती रही, पैसे प्रॉपर्टी सब नीचे तबाह होते रहे लोगों के, ऐसे केस में लैंड की प्रॉपर्टी वैल्यू आ गई नीचे। यानी आज इस लैंड की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली $45,000। अब ये शर्मा जी कोशिश यही करेंगे कि अपनी बैलेंस शीट की बैंड बजाने से अच्छा है कि उसको कॉस्ट पे दिखाए, कम से कम बैलेंस शीट तगड़ी तो दिखेगी, यस मेरे पास $1 लाख की एक लैंड है। लेकिन अगर यही $1 लाख वाली लैंड हो जाती $30 लाख की, तो आपका क्या ख्याल है, फिर मुझे कॉस्ट मॉडल लेना चाहिए या रिवैल्यूएशन मॉडल लेना चाहिए? रिवैल्यूएशन मॉडल। तो शर्मा जी झट से कूद के रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ जाएंगे। यानी ये बिजनेसेस के ऊपर छोड़ा गया है कि आप कौन से वाला मॉडल लो। बिजनेसेस हमेशा कोशिश यही करेंगे कि वो अपनी बैलेंस शीट को थोड़ा सा तगड़ा दिखाएं, लेकिन अगर इतना गैप होता है ना तो ऑडिटर भी बोल देता है कि सर इस कॉस्ट मॉडल को छोड़ दो, रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ जाओ। अगर $1 लाख का आइटम आपका 45,000 पे यानी 50% से भी नीचे आ गया है, यू शुड बुक अ लॉस। तो ये ऑडिटर का काम होता है। लेकिन कंपनी कोशिश क्या करती है, अपनी बैलेंस शीट को साउंड दिखाना। तो वो उन चीजों के ऊपर जहां वैल्यू ऊपर जा रही है उस पर तो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करता है, और जहां लगता है कि यार वैल्यू की फजीयत हो रही है वहां पर वो कॉस्ट मॉडल यूज करता है। अब कॉस्ट मॉडल में भी और रिवैल्यूएशन मॉडल में भी डेप्रिसिएशन तो आपको दोनों पे ही करना है। बस ध्यान इतना रखना है, कॉस्ट मॉडल पे ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर आपके डेप्रिसिएशन लगता रहेगा, और यहाँ पे आपका जो भी वैल्यू रीवैल्यू होके आएगी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा आने वाले सालों के। क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन दोनों का बेसिक डिफरेंस ये है, रिवैल्यूएशन मॉडल में हर बार अमाउंट रीवैल्यू किया जाएगा, हर बार डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का तरीका बदल के देखा जाएगा। अब आती हूँ इसके केस में कि रिवैल्यूएशन जो हम करेंगे, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग अलग अलग जगह पे है, एक पे रिवैल्यूएशन यूज कर लूं, एक पे कॉस्ट मॉडल यूज कर लूं, उस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने वाली जो बॉडी है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसने क्लियरली IAS 16 में डाल दिया कि हेलो थामो, यू कैन नॉट डू दैट। वन क्लास ऑफ असेट्स अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे गए हैं तो वो क्लास ऑफ असेट्स तुम्हारे कहीं पे भी हो उसके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल ही लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा स्मार्टनेस प्ले कर जाते हैं, कई बार स्मार्टनेस IASB भी प्ले कर देता है। अगर आप बोलते हो कि भाई मेरी एक गाड़ी तो विंटेज है, उसको तो मैं रिवैल्यूएशन पे डालूंगा, बाकी गाड़ियों को कॉस्ट मॉडल पे डालूंगा,
ऐसन कैसन भैया, वो सीधा मना कर देंगे जी नहीं, कार्स फॉल अंडर व्हीकल, यानी कैटेगरी ऑफ असेट कार्स है। पूरी की पूरी गाड़ियां या तो रिवैल्यूएशन पे जाएंगी या फिर कॉस्ट मॉडल पे जाएंगी। सिंपल सी चीज, कुछ कंफ्यूजन इसमें? बताओ बताओ। हाँ जी, हाँ बोलो। मैम तो अभी मुझे इसमें से ये समझा कि ब्लॉक ऑफ असेट पे हम रिवैल्यूएशन लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल, अगर कोई नहीं, दूसरा तो उसमें block क्या of होगा asset- सागर, हम ब्लॉक ऑफ असेट्स का मतलब है लैंड के अंदर मेरी एक लैंड सूरत में है, एक लैंड सिक्किम में है, एक लैंड दिल्ली में है, दैट इज अ ब्लॉक ऑफ असेट्स। लेकिन वैल्यूएशन सबका अलग अलग करना है, सबको इकट्ठा करके नहीं करना। हर जगह की जो वैल्यू बढ़ती है वो अलग अलग रेट से बढ़ती है। अगर किसी छोटे से गांव में लोगे उसकी वैल्यू ऑफ एप्रिसिएशन अलग होगी। हम दिल्ली के हिसाब से सारे की सारी लैंड को नहीं ऊपर नीचे कर सकते, लेकिन ये सारी नहीं। लैंड अंडर वन हेड आएंगी। तो जब मैं इस लैंड का एक ही आइटम बैलेंस शीट में डालूंगी, नीचे बनेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। इन नोट्स टू अकाउंट्स मुझे बतानी पड़ेगी पहली लैंड कहाँ है, दूसरी लैंड कितने एकड़ की है, किस पोजीशन पे है, तीसरी लैंड ये कितने एकड़ की है, ये किस स्टेट में है, वहां की रेट क्या है, वहां रजिस्ट्री कैसे होती है। तो ये कई चीजें नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगी। बट लैंड इज वन ब्लॉक ऑफ असेट्स जिसमें आप हर असेट का इंडिविजुअल रिवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, करेक्ट। मैंने मैम सही मेरा क्वेश्चन ये था कि एक ब्लॉक ऑफ असेट को रिवैल्यूएशन में डालें, दूसरे ब्लॉक ऑफ असेट को कॉस्ट मॉडल में, ऐसा कर सकते बिल्कुल हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि लैंड तो चली जाए रिवैल्यूएशन के अंदर, दूसरे वाला यानी प्लांट एंड मशीनरी चला जाए कॉस्ट के अंदर, लेकिन लैंड पूरी की पूरी एक में ही जाएगी, या तो रिवैल्यूएशन में जाएगी या कॉस्ट में जाएगी। नोटेड। ठीक है, चलो। तो ये है जी कि आपको हर रिपोर्टिंग पीरियड पे इसका रिवैल्यूएशन करना है, और रिवैल्यूएशन सबके लिए करना है। अब रिवैल्यूएशन पे होता है गेन, तो मैं क्या करूं, 3 स्टेप्स फॉलो करें, और इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसका ट्रीटमेंट करें। कैसे ट्रीटमेंट होगा, पहले स्टॉप पे देख, पहले स्टेप पे देखते हैं। आपने रिवैल्यूएशन करा, असेट बढ़ गया, रिवैल्यूएशन गेन हो गया। सबसे पहले असेट को नई वाली वैल्यू पे ऊपर लेके आ जाओ। अब मैं तय बात बोल सकती हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को जर्नल एंट्री करनी नहीं आती होगी। जर्नल एंट्री का नाम सुना है? क्लास 11th में पढ़ाई जाती थी, तब हम बिल्कुल भी पढ़ने के मूड में नहीं होते थे। घबराओ मत, मैं भी नहीं होती थी। मैंने भी सीए में जब एंट्री ली है तब जर्नल एंट्री करनी सीखी है। उससे पहले मैं भी लर्न करके देखी। परचेजेस होगा तो डेबिट होगा, परचेजेस कभी भी क्रेडिट नहीं होता है, सेल्स होगा तो हमेशा क्रेडिट होगा, वो कभी भी डेबिट नहीं होता है। मैं भी ऐसे करके गई थी। लेकिन आप लोगों को अब ईमानदारी से बताओ, जर्नल एंट्री करनी आती है या नहीं आती है? आती है मैम। जिनको नहीं आती है वो नो बोल सकते हैं। अरे गट्स कैरी करो, अपनी कमजोरी एडमिट करो। नहीं आती मैम। नहीं आती, नहीं आती मैम। बहुतों को नहीं आती, और मैं खुद कह रही हूँ मुझे नहीं आती थी। तो देखो, इसमें मैंने बहुत सारी स्टडी करके, और मेरे बड़े अच्छे से टीचर थे, उन्होंने मुझे इसमें बड़ा एक इजी सा रूल दिया था। हम जो 11th के रूल्स करते थे, दे वर वेरी टफ टू इम्प्लाई। बड़ा इजी सा रूल बताती हूँ। हमारे पास 2 आइटम्स होते हैं, एक हम पढ़ते हैं पीएनएल, दूसरा हम पढ़ते हैं बैलेंस शीट। आपने इसी तरह की बैलेंस शीट और पीएनएल देखी है? सबने ऐसी देखी है? यस मैम। इधर होती है आपकी इनकम्स, इधर होते हैं आपके खर्चे, इधर होते थे आपके असेट्स, लायबिलिटी। इधर होती थी आपकी लाइबिलिटीज। यही 4 आइटम होते थे। एक सिंपल रूल हम 11th वाला यूज करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स। सैलरी क्या ये एसेट और लाइबिलिटी है या इनकम एक्सपेंस है? सैलरी पेड एक्सपेंस है। रेंट रिसीव क्या है ये? इनकम। इनकम। तो रेंट रिसीव हमेशा क्रेडिट रेंट होगा, सैलरी पेड हमेशा डेबिट सैलरी होगा। हमेशा हमेशा, कोई मतलब ही नहीं है, कुछ और इधर उधर होता है। लेकिन सैलरी आउटस्टैंडिंग बिकम्स अ लायबिलिटी, यानी कि अब हम ऊपर वाले डब्बे से मूव करके यहां आएंगे। इसके लिए रूल समझते हैं। इसके लिए बस एक ही रूल याद रखना, जब भी असेट बढ़ेगा तो डेबिट करना है, बस सिर्फ इतना याद रखना। असेट बढ़ेगा तो क्या करोगे? डेबिट करेंगे। अगर असेट कम होगा तो क्या करोगे? क्रेडिट करेंगे। असेट बढ़ेगा तो आप डेबिट करेंगे, अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करोगे? क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करोगे।
लाइबिलिटी कम होगी तो क्या करोगे? डेबिट। डेबिट। बस इसको याद रखना, जर्नल एंट्री सारी इजी हो जाएगी। अब इसको कैसे काम मिलेंगे देखते चलो। हमारे असेट की वैल्यू बढ़ रही है, असेट की वैल्यू बढ़ रही है। व्हाट शुड आई डू? आई शुड डेबिट द असेट, डेबिट टीपीई, डेबिट टीपीई। इसलिए हम जब असेट खरीदते हैं तो हम डेबिट करते हैं, डेबिट लैंड एंड बिल्डिंग, डेबिट प्लांट एंड मशीनरी। और लेट्स सपोज मैंने कैश में उसका पेमेंट किया, दूसरा असेट कम हो गया, असेट कम, क्या करूं? क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैश। हाँ ईशा, क्रेडिट कैश बोलो, ये जर्नल एंट्री करते थे आप? अभी भी यही करेंगे। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे? इन रूल्स को एक बार कहीं पे लिख लो। ये शुरू में तुम्हें 5-7 दिन जैसी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, उसके बाद में तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देन यू विल हैव दिस कॉन्फिडेंस कि इसमें एंट्री ये होगी। जनरल एंट्री एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन 4-5 नंबर का कई बार एग्जामिनर को लगता है कि इनकी एक नॉलेज चेक कर ली जाए, एफए की नॉलेज, जो आप बहुत लोग एग्जामिशन में लेके आते हैं। एफए में कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब एफए का एग्जामिशन हुआ है तो यहाँ ये सीख लो, ये वैसे भी आना ही चाहिए, इवन इफ यू हैव डन एफए और यू हैव नॉट डन एफए। जनरल एंट्री नहीं आती तो सीख लेते हैं ना, कहाँ दिक्कत है? जिंदगी में जाके सीखोगे, इससे अच्छा यही सीख लो, इसलिए इसको लिख लो। ये दोनों रूल्स, अगर कोई भी आइटम एक्सपेंस या इनकम का होगा हम सीधा ये रूल लगाएंगे, अगर कोई आइटम बैलेंस शीट का होगा जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, वो बन जाती है लाइबिलिटी। जैसे ही लाइबिलिटी बनेगी हम उसको करेंगे क्रेडिट। तो हम क्रेडिट करेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग, पे हुई नहीं है लेकिन सैलरी एक खर्चा होता है तो हम उसको करते हैं डेबिट सैलरी। और इसी एंट्री में अगर कुछ पेमेंट हुआ है सैलरी का, उसको हम करते हैं कैश। यानी $100 की सैलरी में से 20 आउटस्टैंडिंग रह गया, 80 पे हो गया। दिस इज द एंट्री विच वी डू। याद है? कुछ याददाश्त वापस आई? अयो राम, तुम सब जवाब क्यों नहीं देता जी? इज इट सच अ बोरिंग पेपर कि आप लोग बिल्कुल ही पार्टिसिपेशन नहीं मांगता है? अबे बोलो। यस मैम। यस मैम। कितने लोग हैं इस पूरे ग्रुप पे? मैम 35। सिर्फ 35। और आवाजें कितनी आ रही हैं? वरुण की आवाज मैंने नहीं सुनी, शगुन की आवाज मैंने नहीं सुनी, रिद्धिमा की आवाज मैंने नहीं सुनी, प्रज्ञा की आवाज मैंने नहीं सुनी, नेविल, मुस्कान, मनदीप, जसप्रीत, ये मुझे सुनाई नहीं दे रही है या ये बोल नहीं रहे हैं? हम बोल रहे हैं। देखो मेरे पास बहुत तरीके हैं और भी, मजबूर मत करो कि अपन मुंबई या स्टाइल में आ जाए। चलो एनीवेज, हाँ जी। तो सबसे पहली चीज, जब आपने रिवैल्यूएशन किया, रिवैल्यूएशन गेन आया तो आपको एसेट की वैल्यू बढ़ानी है। अब दूसरा, तुम्हारी एसेट की वैल्यू तो बढ़ गई, आज तक का उस पर जो भी डेप्रिसिएशन बुक किया हुआ है क्या करोगे? उसका एसेट तो बढ़ गया, हटाओ इसको, रिमूव करो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? अपने आप में क्रेडिट नेचर का बैलेंस होता है। क्रेडिट नेचर का क्यों होता है? असेट की वैल्यू कम होती है इससे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। तो असेट कम होता है तो हम क्रेडिट करते हैं ना। यानी एक आइटम है जो क्रेडिट नेचर का है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैं बोल रही हूं इसको हटा दो यहां से, यानी मुझे इसको करना होगा डेबिट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बी डेबिटेड। इस बात को वापस से सुनो, एक असेट की वैल्यू बढ़ गई तो आज तक जो तुमने उसमें वैल्यू गिरा रखी थी, क्या करोगे उसका? अब हटाओ उसको। अब तो इस वैल्यू की वैल्यू, इस असेट की वैल्यू बढ़ानी है, कम नहीं करनी है। तो अगर एक आइटम ने उसकी वैल्यू कम कर रखी थी, बढ़ा दो उसको। अब आपने बढ़ा दी, जब आप बढ़ा रहे हैं तो डेबिट ही होना चाहिए ना असेट, यानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अमाउंट से भी डेबिट करो ताकि असेट की वैल्यू बढ़ी हुई दिखे। अब रहेगा, हमने डेबिट कर दिया पीपीई, हमने डेबिट कर दिया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेकिन कुछ क्रेडिट भी तो चाहिए। एवरी एंट्री मस्ट हैव अ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। क्रेडिट किसको करूं? ये सारा जो फायदा हुआ है इसको आप क्रेडिट करिए रिवैल्यूएशन सरप्लस। एक नए अकाउंट का नाम सीख रहे हैं आप, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो ओसीआई में जाता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है, जो लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था। क्योंकि ये फायदा अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, इसलिए ना तो इसको हम क्रेडिट कैश कर सकते हैं, ना क्रेडिट P&L कर सकते हैं। दिस इज नॉट रियलाइज्ड येट।
ये तो हम रिवैल्यूएशन करा रहे हैं, पता कर रहे हैं भैया एक्चुअली तुम बता दो हमारे एसेट की वैल्यू क्या है। उसने बोला वैल्यू बढ़ गई, पर रियलाइज तो नहीं हुई है ना, इसलिए रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल देंगे। तो 3 स्टेप्स में एंट्री ली। नंबर 1, आपने अपने एसेट की वैल्यू बढ़ा दी डेबिट करके। नंबर 2, जब एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो डेप्रिसिएशन का करोगे क्या? डेप्रिसिएशन तो एसेट का रिडक्शन दिखाता है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन की बजाय एसेट तो बढ़ रहा है। दैट मीन्स यू डोंट नीड दिस, रवाना करो इसको अपने घर। और तीसरी चीज, अब ये जो दोनों फायदे हुए हैं इसको कहां लेके जाओगे? यू कैन नॉट टेक इट टू P&L, दिस इज नॉट अ रियलाइज्ड गेन, यू हैव टू टेक इट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन गेन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रूट होता है, और क्योंकि ये रियलाइज नहीं है, शेयर होल्डर्स को बांट मत देना कि चलो जी लो डिविडेंड, तुम भी लो तुम भी लो तुम भी लो तुम भी लो। मतलब ऐसा होता है कि हमारे मम्मी पापा एक घर खरीदते हैं 50 लाख रुपीस का, ये घर वो खरीदते हैं 10 साल पहले, आज इस घर की वैल्यू होती है 1.5 करोड़ की, तो क्या 1 करोड़ के बराबर तुम लोग पार्टी कर लेते हो? नो, दैट्स नॉट अ रियलाइज्ड गेन। तो शेयर होल्डर्स को पार्टी नहीं करा देनी है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस निकालो, लो डिविडेंड, लो भैया लो 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 सब डिविडेंड लो, हमें ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से डाला जाता है। सो ये 3 स्टेप्स में इसकी एंट्री होती है, जो एंट्री कुछ ऐसी दिखती है। मैम, हाँ जी बोलो प्रभात। मैम एक बार स्टेप ऊपर थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। स्टेप 2 में आप जब असेट को कह रहे हैं कि ये तो बढ़ रहा है, व्हाट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस असेट की वैल्यू गिर रही है, एक तरफ कह रहे हो बढ़ रही है, एक तरफ कह रहे हो गिर रही है, भैया कंफ्यूजन दूर करो। तो वैल्यू तो वाकई बढ़ रही है, एक्चुअली बोल रहा है वैल्यू बढ़ रही है। आपने जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाया हुआ है अब उसको हटा दो, यू डोंट नीड दैट, उसको डेबिट बैक कर दो, ठीक है? क्लियर क्लियर क्लियर। अब इसको ना क्वेश्चन से समझते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक वो दिया है आइडिया कि इसको करना कैसे है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 6 ये आपकी स्टडी टेक्स्ट का क्वेश्चन है, कैप्लन स्टडी टेक्स्ट का। इस क्वेश्चन को एक बार आपको पेन पेपर पे मेरे सामने करना है, फटाफट से निकालो। और जितने लोग ऑलरेडी हमसे रजिस्टर कर चुके हैं, ग्रुप पे हैं, वो जहां इस क्वेश्चन को कर रहे हैं मुझे फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे। जो लोग नहीं है वो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में डालना। अभी के लिए फटाफट लिखना चालू करो, इसके 2-3 जो चीजें हैं इनको उतारो, देन आई स्टार्ट डूइंग दिस कि इसको कैसे करना है। बिल्डिंग, उसकी कॉस्ट है 1200, डेप्रिसिएशन उसके लगा हुआ है 144 का, यानी नीचे गिर के वैल्यू आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिल्डिंग की दिख रही है 1056। अब ये रिवैल्यूएशन इसका करना चाह रहे हैं, देखेंगे। फिलहाल के लिए ये तीनों चीजें उतारो, लिखो कॉस्ट, इस पे डेप्रिसिएशन जो आप लगा चुके हो वो लिख लो 144 का। तो इसकी रिटन डाउन वैल्यू कितनी दिख रही होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? 1056 की। एक बार ये लिख लो, क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट लिख लो, क्योंकि अभी आपने बुक्स भी नहीं खरीदी होंगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से लिखो इसको। जो पेन पेपर नहीं लेके बैठे हैं भाग के पेन पेपर लेके आओ। लिख लिया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो जी क्या हुआ। ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है एज ऑन 31 दिसंबर 2017 को। सो दिस वैल्यू इज एज ऑन 31 दिसंबर 2017 को। लेट्स सपोज 17 है ये। द बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 1 जनवरी 18, यानी उसके इमीडिएटली अगले दिन आपने रीवैल्यू कर दी। कितने की करी बिल्डिंग रीवैल्यू? 14 lakhs की। ध्यान रखना एफआर में ये थोड़ा सा बड़ा चक्कर होता है। क्या चक्कर होता है? ये ट्रिपल जीरोज में कुछ वैल्यूज देते हैं, कुछ वैल्यूज पूरे नंबर्स में, पूरे जीरोज में दे देते हैं। आपको बहुत ध्यान से इसको प्ले करना है। मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज ली है ये वैल्यूज है ट्रिपल जीरोज में। रीवैल्यूएशन वाला अमाउंट है पूरा का पूरा 1400 से। इसका मतलब मुझे कैलकुलेशन करनी है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, वरना यहां खामखा में गलती हो जाएगी। रीवैल्यूड अमाउंट, किस दिन रिवैल्यूएशन करा हमने? एज ऑन
1 जनवरी 2018, यानी जिस दिन वैल्यू 1056 थी उसके इमीडिएटली अगले दिन 1400 वैल्यू उसकी मिलती है। क्या यहां तक ये बात सबको समझ आती है? Yes. बोलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. क्या बोलते हो, रिवैल्यूएशन गेन है कि लॉस है? गेन है। Gain. यार फायदा है यार, आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो पहले गेन कैलकुलेट कर ले। शो द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तुम एक्सट्रैक्ट्स को छोड़ो, हम यहाँ पे जहां जहां जो जो एंट्री जाएगी वो सब वैसे भी करेंगे। तो सबसे पहले मुझे रिवैल्यूएशन गेन बताओ, कितना हुआ? 344. बिल्कुल, सो दिस इज रिवैल्यूएशन गेन। आज 1400 की वर्थ का सेट है जो हमारी बुक्स में 1056 ही दिखा रहा है। दैट मीन्स 344 का रिवैल्यूएशन गेन हो गया। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, रिवैल्यूएशन गेन कहां से रूट करें? गेन है तो पीएनएल में ले चले, चलो पीएनएल में लेके चलते हैं। Revaluation surplus. Revaluation reserve plus. रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस, लेकिन रूट कहां से करूं? पीएनएल से? OCI से. OCI से। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, दिस इज नॉट अ रियलाइज्ड गेन जो पीएनएल में ले जाओगे, ये आपको ले जाना होगा ओसीआई से। सो पहला ट्रीटमेंट 344 का रिवैल्यूएशन गेन ओसीआई के थ्रू रिवैल्यूएशन सरप्लस बनेगा। क्या इस अमाउंट में किसी को कोई भी दिक्कत है? बोलो। No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं, नेक्स्ट चीज पे। अब बैलेंस शीट भी हिलेगी क्योंकि आपके असेट की वैल्यू भी चेंज हुई है। असेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी कि 31 दिसंबर 2018 को, ये तो रिवैल्यूएशन हुआ है 1 जनवरी को। अब ये बोल रहा है भैया 31 दिसंबर की बैलेंस शीट में क्या क्या वैल्यूज आनी चाहिए, यानी एक साल और निकल गया। 31 दिसंबर 2018 की बैलेंस शीट में मेरा असेट यानी कि ये जो भी लैंड एंड बिल्डिंग है ये कितने की दिखनी चाहिए, उस पर वैल्यूएशन करते हैं। नॉन करंट असेट बिल्डिंग, बताओ जी, हमने 1400 की वैल्यू पहुंचा दी 1 जनवरी को, आगे क्या करें? डेप्रिसिएशन लगाओ। अब Depreciation. डेप्रिसिएशन कितने सालों के बेसिस पे, क्वेश्चन ने तो कुछ दिया ही नहीं है, मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं कैसे? 40 years. 40 years दिए ना, 14 ये देखो इधर रखे 40 ईयर्स दिए, यानी कि कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। जब स्क्रैप वैल्यू की इंफॉर्मेशन नहीं हो तो क्या करेंगे आप? मत परेशान हो, जीरो स्क्रैप वैल्यू लेके इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? 1400 की वैल्यू आज है, आज से यूज करना चालू करेंगे, 40 साल तक यूज करेंगे। तो क्या डेप्रिसिएशन हर साल लगा देंगे? 35 का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो ये जो 35 का डेप्रिसिएशन है ये कहां जाना चाहिए? एक तो जाना चाहिए ये इन्वेंट्री अकाउंट में, चाहिए मैम। एक तो पीएनएल में जाएगा, दूसरा एक्यूमुलेटेड में जाएगा, बट एक्यूमुलेटेड में ऑलरेडी नेगेटिव है तो उसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। रुको 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 रुको, पहले तो अपन एक काम करते हैं, पीएनएल में तो लेके चले, पीएनएल में जाएगा, ये जाएगा कि नहीं जाएगा ये बताओ। पीएनएल एज ऑन 31 दिसंबर 2018 क्या डेप्रिसिएशन हम 35,000 का बुक करेंगे? करेंगे। तो एक ट्रीटमेंट 344 का, दूसरा ट्रीटमेंट 35 का पीएनएल में डेप्रिसिएशन बुक करना। दूसरा डेप्रिसिएशन अपने को यहां से माइनस नहीं करना चाहिए 35 का, नहीं चाहिए। कितना आएगा? 1400 माइनस 35 विल बी 1365। ये आपकी बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिखेगी। ये तीसरा आइटम, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई? वापस ब्रीफ करते हैं। सबसे पहले 31 दिसंबर का ही आपके पास बैलेंस है और इसके इमीडिएटली अगले दिन हम रिवैल्यूएशन करते हैं। 1056 से आइटम सीधा 1400 पे पहुंच जाता है, यानी एक रिवैल्यूएशन गेन होता है। इस रिवैल्यूएशन गेन को हमें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रूट करना है रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से। दूसरा, अब असेट की वर्थ होती है 1400 जो हम आने वाले 40 इयर्स यूज करेंगे, 40 साल यूज करेंगे, यानी हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 35 का है। 35 का डेप्रिसिएशन कहां से जाएगा? ये तो हो रहा है तो पीएनएल से रूट कर दो, ये पीएनएल में चला जाएगा। दूसरी एंट्री आप बैलेंस शीट में बिल्डिंग में से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे ताकि बिल्डिंग नेट दिखे। क्या 1365 समझ आया? बताओ। ठीक है। अब क्वेश्चन ने पूछा नहीं है वैसे,
लेकिन अगर जर्नल एंट्री करने की बात करें तो करें, एक बार ट्राई करें कि जर्नल एंट्री इसकी कैसे होगी, क्योंकि हो सकता है पेपर में आ जाए, यहां नहीं पूछा वहां तो पूछ ही सकता है ना। तो वैल्यू ऑफ पीपी पहले तो बढ़ानी है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए डेबिट। ठीक है, कितने से डेबिट करूं, चलो मैं इसकी एंट्री पहले करके दिखाती हूँ। डेबिट करेंगे पीपी को कितने से, चलो मुझे नहीं समझ में आ रहा कितने से। डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो करेंगे ना, करेक्ट। 144 से कर दूं। क्रेडिट रिवैल्यूएशन गेन कितने से करूं, 344 जाएगा। बोलो पीपी नेट कितनी बढ़ी, 200। ये 200 कैसे बढ़ी, कॉस्ट 1200 ही तो थी, तो पीपी ये तो कॉस्ट ही है ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने यहां से ले लिया, तो पीपी को मैंने यहां से ले लिया, 1200 कॉस्ट वाला आइटम 1400 का बन गया, तो कॉस्ट के नाम पे मुझे सिर्फ 200 बढ़ाने हैं, बाकी 144 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रिवर्सल है। तो टोटल फायदा कितना हुआ, 344 का, और वही हमने डायरेक्टली निकाला था लेमैन की तरह। समझे? वापस से सुनो एंट्री को। जर्नल एंट्री बोलती है कि अगर आपने रिवैल्यूएशन किया और वैल्यू ऑफ असेट बढ़ गई तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का करोगे क्या, आज तक का जो डेप्रिसिएशन है उसका तो कोई यूज ही नहीं है, एसेट की वैल्यू तो बढ़ रही है, तो उस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म कर दो। खत्म करोगे तो 144 सीधा डेबिट, खत्म। हमने नॉर्मल लेमैन की तरह ये निकाल लिया कि भैया फायदा कितना हो रहा है, 1056 का असेट बुक्स में दिखता है, ये 1400 का पहुंच जाता है, यानी कि नेट में 344 का फायदा है, यानी कि मुझे ये 344 का फायदा यहां बुक करना है। अब सवाल ये आता है कि पीपी कितने की बढ़ी नेट, फिर तो पीपी पता चलती है, पीपी तो 200 की बढ़ी। कैसे पता चला हमें, ये पीपी 1200 कॉस्ट की ही तो थी, आज आप इसको 1400 पे लेके जा रहे हो, तो कॉस्ट में क्या वैल्यू बढ़ गई, 200 ही बढ़ी। तो तुम्हारा गेन टू 344 कैसे हुआ, 344 के दो टुकड़े हैं, एक कॉस्ट 200 बढ़ना और दूसरा जो आज तक आपने डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर रखा था ना 144 का, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो टोटल फायदा कितना हो गया 344 का। अब ये ऐसा क्यों समझा रही हूं, आइडियली ये जो ग्रीन वाले मैंने लिखे हैं ये क्वेश्चन में पूछे नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ तीन ही चीजें पूछी थी, 1 गेन कितना होगा कहां जाएगा, 2 डेप्रिसिएशन कितना होगा कहां जाएगा, 3 आपकी बैलेंस शीट में पीपी या लैंड एंड बिल्डिंग कितने की दिखेगी। तो मैंने आपको ये सब क्यों बताया, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, एग्जामिनर तो पूछ सकता है ना कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, वो बिल्कुल पूछ सकता है। वो जर्नल एंट्री के 4 ऑप्शन देगा और उन ऑप्शंस में से आपको वो वाला चूज करना है जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स किया गया हो। इनके चारों ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन पक्का ये वाला मिलेगा, डेबिट पीपी क्रेडिट ओसीआई या रिवैल्यूएशन सरप्लस 344 का पक्का मिलेगा ये। दिस एंट्री इज रॉन्ग, तुमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो रिमूव किया ही नहीं, यानी एट वन प्लेस यू आर सेइंग कि मेरी पीपी बढ़ रही है और दूसरी तरफ यू आर बुकिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हिच रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ द पीपी। एक तरफ वैल्यू बढ़ रही है, एक तरफ वैल्यू कम हो रही है, सामने वाला बोलेगा यार तुम खुद ही कंफ्यूज हो, बढ़ रही है कि कम हो रही है, भैया बता दो। डेप्रिसिएशन अब चार्ज करना है नई वैल्यू पे, पुराना डेप्रिसिएशन तो असेट को कम कर रहा है और तुम कह रहे हो मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है, तो तुम क्यों कम कर रहे हो, हटाओ फिर उसको। यानी इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, आपकी पीपी सिर्फ 200 की ही बढ़ेगी। ये 200 कौन सा है, 1400 माइनस 1200 है। आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब नहीं चाहिए, यू डोंट नीड इट, योर एसेट इज गोइंग अप। तो पहले का जो भी रिडक्शन इन एसेट बुक किया हुआ है हटाओ उसको, और क्रेडिट फायदा बुक करो। ये फायदा होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम का 344। गॉट इट, बोलो कुछ क्लियर है ये? इसको लिखो, ये जो तीनों ट्रीटमेंट्स मैंने बताए, पहला 344 ओसीआई में जाएगा, इसको भी लिखो। दूसरा डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा और P&L में जाएगा, इसको लिखो। तीसरा आपकी बैलेंस शीट में अब बिल्डिंग कितने की दिखेगी वो लिखो। दूसरा जर्नल एंट्री क्वेश्चन ने पूछी नहीं है लेकिन आप लिखो, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे भी मैंने पिछले सालों में जर्नल एंट्री से रिलेटेड इसके क्वेश्चन देखे हैं।
तो ये आ सकता है, भले क्वेश्चन अभी पूछा नहीं हो, इट कैन बी देयर इन द एग्जाम, यू शुड नो दिस। ठीक है, तो लिखो। और कहीं समझने में कोई दिक्कत है बताओ, बताओ जी। क्लियर टू एवरीवन? Yes, Ma'am, ma'am. what if accumulated depreciation is more than the revaluation gain? Then the revaluation gain, not possible. Okay. ठीक है, it's not possible. Okay? Yes, sir. चलिए, just copy this और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े या नेक्स्ट क्लास में पढ़े? नहीं यार, दिस विल बी टू मच फॉर यू ऑल, एकदम से बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड until and unless you all have books, you all have notes in front of you, ये करना काफी घातक हो सकता है। लेट मी सी। नहीं भैया, नो 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 नो, विल कंटिन्यू दिस टुमारो। ठीक है, आज नहीं करेंगे वरना एकदम से भारी वर्षा दिमाग में भी हो जाएगी। लेकिन टिल द टाइम ये वाली क्लास भी यू विल फाइंड ऑन माय यूट्यूब चैनल, वहां से रिवीजन करो। ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, फॉर श्योर आपको ये क्वेश्चंस अपने हाथ से फिर से ट्राई करने हैं। ठीक है, try to register yourself by today itself, because by that time you will have the access of the LMS also, the learning management system, जिससे आपको क्लासेस की एक्सेस मिलेंगी। The moment you register yourself, नोट्स हाथ में आ जाएंगे आपके, तो पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी, बुक्स का फैसला हो जाएगा, बुक्स खरीद लोगे, पढ़ाई उतनी जल्दी चालू हो जाएगी। Although no rush, you can do that on tomorrow, Monday, that's absolutely fine. But immediately from Tuesday, I will have to rush up by giving some homework also. ओके, कल मिले वापस से। आगे भी चलेंगे सब। चलो, चलिए जी, कैच यू ऑल टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you.